Respected all teachers, good morning to all of you. A warm welcome in our today's in-house training session. First of all, I would like to introduce myself. I am Kumari Ranjita, Hindi teacher in our school, Permanent Public School. I am very thankful our principal sir, our STNC and our organization to providing me this opportunity to deliver this session. Today's my topic, promoting mental health in school. Now I am going to start the session. Mental health. First of all, सबसे पहले हम जानेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है. Mental health encompasses emotional, psychological and social well-beings, influencing cognition, perception and behavior. It likewise determines how an individual handle stress, interpersonal relationships and decision making. According to WHO, there is no single official definition of mental health. Mental health refers to a person's psychological, emotional and social well-being. It influences what they feel and how they think and behave. The state of cognitive and behavioral well-being is referred to as mental health. The term mental health is also used to refer to the absence of mental diseases. Mental health means keeping our mind healthy. Mankind generally is more focused on keeping their physical body healthy. People tend to ignore the state of their minds. Human superiority over other animals lies in his superior mind. Man has been able to control life due to his highly developed brain. So it becomes very important for a man to keep both his body and mind fit and healthy. Both physical and mental health are equally important for better performance and results. What is mental health promoting in school? We promote self-esteem. Our teachers help the student to understand that it is better to resolve the conflicts than keep thinking about them, and some setbacks are inevitable, so just face them. We boost their self-confidence by supporting good decision making, assertiveness, perseverance and self-determination. Why importance mental health promoting school? Mental health education increases awareness. Student will be more prone to understanding the concept of self-care and well-being. They will be encouraged to look after their own health care and understand their health is in their own hands. तो ये जो मानसिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य या संज्ञानात्मक अथवा भावनात्मक सलामती का स्तर का वर्णन करता है या फिर किसी मानसिक विकार की अनुपस्थिति को दर्शाता है. यानी कि जो भी पर्सन है, जो भी व्यक्ति है, वह मानसिक रूप से स्वस्थ है कि नहीं, या तो उसमें वह विकार है यानी कि मानसिक रोग है, या फिर वह स्वस्थ है. यही जो है वह दर्शाता है. मानसिक स्वास्थ्य जो है, जो हमारे छात्र होते हैं, स्टूडेंट लाइफ या फिर सबके लिए, बड़ों के लिए और बच्चों के लिए, सबके लिए जरूरी होता है. अधिकतर हम जो है हेल्दी बॉडी पर ही ध्यान देते हैं फिजिकली, लेकिन फिजिकली के साथ साथ हमें
मेंटली स्वस्थ रहना भी एकदम जरूरी है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ एज ए स्टूडेंट? बच्चों के लिए मेंटल हेल्थ क्यों जरूरी है? द मेंटल हेल्थ इज स्टूडेंट कैन अफेक्ट देयर एजुकेशन। मानसिक स्वास्थ्य जो है बच्चों के एजुकेशन पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है, इसके बहुत इफेक्ट्स होते हैं, इसलिए बच्चों में यह स्टूडेंट्स में जो है बहुत जरूरी होता है। सोशल लाइफ, एजुकेशन, सोशल लाइफ एंड इमोशनल वेलबींग, स्टूडेंट स्ट्रगलिंग with their mental health may experience greater challenges throughout school and adulthood, while those not struggling may have a greater just for their education, social experience and more. तो बच्चे जब पढ़ने के लिए आते हैं तो उनका मानसिक स्वास्थ्य अगर सही है तो पढ़ने में जो है बच्चों का ध्यान अच्छे तरीके से लगता है। तो इसलिए एजुकेशन में जो है यानी कि शिक्षा में मेंटल हेल्थ एकदम बहुत जरूरी है। द पब्लिक हेल्थ एजेंसी ऑफ कनाडा डिफाइंस मेंटल हेल्थ एज द कैपेसिटी ऑफ ईच एंड ऑल ऑफ अस टू फील, थिंक, act in ways that enhance our ability to enjoy life and deal with challenges we face. It is a positive sense of emotional and well-being that respect the importance of culture, equality, social justice, interconnections and personal dignity. What is mental health promoting? Mental health promotion is about creating environment that promote and sustain positive mental health for everyone. Activities and intervention are designed to enhance protective factors and minimize risk factors. तो बच्चों में जो मानसिक स्वास्थ्य है स्टूडेंट लाइफ में तो क्यों जरूरी है? क्योंकि कहा जाता है कि स्वस्थ छात्र, एक मेंटली हेल्दी जो स्वास्थ्य होता है वह एक क्या होता है? बेटर लर्नर होता है, यानी कि हेल्दी स्टूडेंट आर बेटर लर्नर्स। कि बच्चा जब स्वस्थ रहेगा तो वह तभी वह अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाएगा। तो इसीलिए यहाँ जो है इसके बारे में कि हेल्दी स्टूडेंट आर बेटर लर्नर्स, हेल्थ एंड एजुकेशन आर इंटरडिपेंडेंट, हेल्दी स्टूडेंट आर बेटर लर्नर्स। तो ये जो हेल्थ है और एजुकेशन है इन दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। हेल्थ का और एजुकेशन का, शिक्षा का आपस में गहरा संबंध है। कहा जाता है कि एक स्वस्थ छात्र बेटर लर्नर्स यानी कि अच्छा छात्र होता है। Research has shown that CSH is an effective way to tap into that linkage, improving both health and educational outcomes and encouraging healthy behaviors that last a lifetime in the classroom. Facilities improve academic achievements and can lead to fewer behavioral problems. In the broader school environment, it helps students develop the skills they need to be physically and emotionally healthy for life. While this may seem like additional work, it is not. It is a new way to working that soon becomes every practice. तो बच्चों को अगर हेल्दी रखना है तो इसके लिए स्कूल का जो इन्वायरमेंट है बहुत ज़रूरी है। स्कूल का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए जिससे बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर कोई असर न पड़े। और ये जो है किसके द्वारा? तो टीचर के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा ही इसे क्रिएट किया जा सकता है बच्चों का माइंड स्वस्थ रखने के लिए। तो आगे हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स कि विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने में एक शिक्षक की क्या भूमिका है, क्या भूमिका होनी चाहिए।
विद्यालयों में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने का दायित्व भी शिक्षकों पर ही होता है। अध्यापक को चाहिए कि वह प्रत्येक बालक के समुचित विकास पर ध्यान रखे। अध्यापक को चाहिए कि वह बालकों के वास्तविक मानसिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करे और उनके मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन के लिए तत्पर रहे। मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में फ्रेंडसन ने कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य का विकास शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य और प्रभावशाली अधिगम की एक अनिवार्य शर्त दोनों है। तो ये जो मानसिक स्वास्थ्य है, इसको बेटर करने के लिए, अच्छा रखने के लिए शिक्षक की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है विद्यालयों में। और इसके लिए फ्रेंडसन ने इसकी परिभाषा दी है। फ्रेंडसन ने कहा है इसके बारे में कुछ कि मानसिक स्वास्थ्य का विकास शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यानी कि शिक्षा के तो बहुत सारे उद्देश्य है। विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण किस लिए करता है, इसके बहुत सारे उद्देश्य है। तो इसी में से एक उद्देश्य ये भी है कि मानसिक स्वास्थ्य जो है उसका विकास हो, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य का विकास हो और प्रभावशाली अधिगम की एक अनिवार्य शर्त है। ये दोनों जो है यह शिक्षा के उद्देश्य में शामिल होते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के महत्व से अवगत होने वाले शिक्षक विद्यालय में उपलब्ध प्रत्येक साधन का प्रयोग बालकों के मानसिक स्वास्थ्य में उन्नति करने के लिए करते हैं। तो यहाँ अगर हम बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में समझ रखते हैं या हम समझ रहे हैं कि कुछ ना कुछ बच्चों में प्रॉब्लम है, तो उसको ध्यान में रखते हुए टीचर क्या करते हैं कि विद्यालय में जो भी साधन उपलब्ध है, जो भी चीज अवेलेबल है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य में क्या हो सके कि हम वृद्धि ला सके, बच्चों के स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं, तो उसका उपयोग टीचर करते हैं। उस साधन का उपयोग टीचर करते हैं, बच्चों के स्वास्थ्य की उन्नति के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए करते हैं। कुछ यहाँ विधियां हैं, प्रविधियां हैं, जिसे हम जानेंगे आगे। तो सबसे पहले सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। बच्चों के साथ टीचर का व्यवहार होना चाहिए कैसा? सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। बालकों के प्रति शिक्षक का व्यवहार नम्र, शिष्ट और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। पक्षपात या भेदभाव किए बिना उसे कक्षा एवं विद्यालय के समस्त बालकों के साथ समान और प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। इससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ जो हमारा पहला टॉपिक है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, तो हमारे जो छात्र हैं, जो पढ़ने आते हैं, जो बच्चे हैं, स्टूडेंट है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं और माइंड उनका अलग अलग होता है सबका। तो सबसे पहले शिक्षक को है उनके प्रति कैसा होना चाहिए? तो नम्र, शिष्ट और प्रेम पूर्ण, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। पक्षपात या भेदभाव तो करना ही नहीं चाहिए। पक्षपात की भावना या भेदभाव की भावना शिक्षक में कभी होनी ही नहीं चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि वे कक्षा, और सिर्फ कक्षा ही नहीं, विद्यालय के हर छात्रों के साथ समानता का व्यवहार और प्रेम पूर्णक व्यवहार करे। इससे क्या होता है कि बालकों के मानसिक स्वास्थ्य पर इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। अगर हम किसी से पक्षपात करेंगे, भेदभाव करेंगे, तो बच्चा क्या होगा? माइंडली डिस्टर्ब होगा। तो हम ऐसा नहीं करेंगे। सभी जो है क्या करेंगे कि प्रेम पूर्ण और दूसरी हमारी प्रविधि है प्रजातांत्रिक अनुशासन। विद्यालय में अनुशासन की स्थापना में विद्यालय के शिक्षकों का विशेष योगदान होता है और अनुशासन का मानसिक स्वास्थ्य से अनुलोम एवं प्रत्यक्ष संबंध होता है। अतः शिक्षकों को चाहिए कि कक्षा तथा विद्यालय का अनुशासन भय, दंड, दमन और कठोरता पर आधारित न होकर प्रजातांत्रिक सिद्धांतों यानी कि स्वतंत्रता, समानता और न्याय पर आधारित होना चाहिए। तो देखिए, हम जब कक्षा में जाते हैं या फिर विद्यालय, सभी बच्चे, सिर्फ कक्षा के नहीं, सारे विद्यालय के बच्चे हमारे अपने होते हैं। तो यहाँ का जो माहौल है, इन्वायरमेंट है, कैसा होना चाहिए
तो भय, दंड ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी को कुछ सिखाना पढ़ाना चाहते हैं तो डरा धमका करके नहीं सिखा सकते हैं। किसी से कुछ काम करवाना होता है तो जब तक हम प्यार से नहीं बोलेंगे तो काम हमारा पूरा नहीं होता है। इसलिए बच्चों के साथ भी हमें वैसा ही व्यवहार रखना चाहिए, डराना, धमकाना या फिर दंड, इन सब चीजों से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि इसका जो है बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जबकि ठीक इसके विपरीत माहौल कैसा होना चाहिए, तो समानता, स्वतंत्र और न्याय पर आधारित, सही गलत यानी कि पक्षपात, भेदभाव, ये सब बिल्कुल, या दंड, भय होना ही नहीं चाहिए। बालकों में स्व अनुशासन, आत्म अनुशासन की भावना का विकास करने के लिए स्व अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन तथा अनुकरण द्वारा अनुशासन को प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी कि जो हमारे छात्र हैं इनमें अनुशासन या फिर उनका खुद आत्म अनुशासन, इसको क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, प्यार से बोल करके, डरा धमका करके ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत होता है लेकिन ज्यादा नहीं। तो इससे बच्चों को हम मतलब जितना हो सके कोई भी काम प्रेम पूर्ण व्यवहार से ही कराएं, तो उन्हें अनुशासन के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे। इसके साथ साथ बालकों को उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य सौंपकर विद्यालय के प्रशासन में सहयोगी एवं भागीदारी बनाना चाहिए। इसके साथ साथ क्या है, जो हमारे छात्र हैं तो इन्हें कुछ उत्तरदायित्व पूर्ण काम सौंपकर, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, क्लास में मॉनिटर बनाते हैं या फिर कुछ वर्क होता है जो कि छात्रों को ही जिम्मे डाल दें हम, उनकी जिम्मेदारी, ताकि इससे बच्चे अपनी जिम्मेदारी को निभाना सीख लेंगे और इससे हमारे विद्यालय में भी सहयोग होता है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम छात्रों को जिम्मेदारी, जैसे मान के चले असेंबली के लिए उनको असेंबली का जिम्मेदारी सौंपना, या फिर जो पेड़ पौधे हैं उनकी केयर करने की भी जिम्मेदारी सौंपना, उसके बारे में बच्चों को बताना। तो इससे क्या होगा कि हमारे विद्यालय को भी सहयोग मिलेगा और बच्चे भी है अपनी जिम्मेदारी या फिर अपने उत्तरदायित्व को निभाना सीख जाएंगे। ऐसा करने से बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को कठोर अनुशासन के दुष्प्रभाव से बचाया जा सकता है तथा श्रेष्ठ मानसिक स्वास्थ्य में निरंतर उन्नति होती रहती है। अगर हम ऐसा करते हैं कि बच्चों को उत्तरदायित्व सौंपते हैं और बच्चे कुछ ऐसे भी उत्तरदायित्व दे जिनमें बच्चे मौज मस्ती के साथ उसे कर सके, जैसे पेड़ पौधों की रखवाली करना, उसकी केयरिंग करना, या फिर कोई गेम वगैरह का जिम्मेदारी हो गया असेंबली का, तो बच्चे ये सब खुशी खुशी करेंगे। तो इससे क्या होगा कि उनका मानसिक स्वास्थ्य जो है इसकी निरंतर उन्नति होती रहेगी। आगे जो है उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग, अगला जो प्रविधि है उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग। शिक्षण विधियों का बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उपयुक्त शिक्षण विधियों के अभाव में बालकों में अनेक प्रकार की मानसिक विसंगतियां, बुराइयां, कुंठा तथा बीमारियां घर कर लेती हैं जो उनके भावी जीवन को नुकसान पहुंचाती है। कक्षा के अलग अलग मानसिक क्षमता के बालकों को दृष्टिगत रखते हुए उपयुक्त अनुकूलन शिक्षण सूत्रों, युक्तियों, प्रविधियों एवं विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो जब हम कक्षा में पढ़ाने जाते हैं बच्चों को, तो वहाँ जो हमारी पढ़ाने की शिक्षण विधियाँ यानी कि हम जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने का जो तरीका है तो वह कैसा होना चाहिए, उपयुक्त होना चाहिए, कि जिसमें बच्चे बोरिंग ना हो। बोरिंग महसूस करेंगे तो फिर पढ़ने में मन नहीं लगेगा। और ऐसी विधियां हम अपने से भी सोच सकते हैं, या बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जो अदर कहीं से हम ट्रेनिंग द्वारा भी हम ट्रेनिंग इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम ये सब जान सके और हम क्या करें, नई नई विधियों का या फिर अच्छी विधियों का उपयोग करें, जिससे बच्चा क्या होगा कि उसके मानसिक स्वास्थ्य जो क्या है उसका बना रहेगा और उसे पढ़ने में क्या होगी, रुचि महसूस होगी, वह पढ़ने में इंटरेस्ट लेगा। इसलिए हमें अनुकूल युक्तियों का एवं विधियों का प्रयोग कक्षा में शिक्षण विधियों में करना चाहिए। अगला है कि उपयुक्त पाठ्यक्रम का संप्रेषण।
तो शिक्षण विधियों के साथ साथ शिक्षकों को चाहिए कि कक्षा के बालकों के मानसिक वृद्धि क्षमता, रुचि तथा ग्राह्यता को ध्यान रखते हुए उपयुक्त मात्रा में ही उनकी रुचि एवं बोधगम्यता एवं बोध के क्षमता के अनुसार संप्रेषित करें। आज जब हम पढ़ाने जाते हैं क्लास में, तो यहाँ कहा जा रहा है कि हमारी शिक्षण विधि तो उपयुक्त होनी ही चाहिए। उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एक ही कक्षा में कई तरह के बालक होते हैं, कई तरह के बच्चे होते हैं, तो हमें ध्यान में रखें और ध्यान में रखते हुए हम ये देखें कि बच्चे बोरिंग ना हो। अगर हम पढ़ाना शुरू किए, अब ये नहीं कि लगातार पढ़ाते गए मतलब कुछ ज्यादा ही, कुछ नहीं, एक थोड़ा सा लिमिट में ही पढ़ाएं ताकि बच्चे भी जो है बोरिंग महसूस न करे। तो उनकी क्षमता के अनुसार ही हम जानते हैं कि 30 मिनट 25 मिनट काफी है, 2-4-5 मिनट कुछ एक्स्ट्रा बातें कर लिए जिससे बच्चे भी बोरिंग नहीं फील करेंगे। तो उसके अनुसार ही हम क्या करें, वहां पर संप्रेषित करें। ऐसा करने से जहां एक और शिक्षक अपने शिक्षण अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होगा, वहीं दूसरी ओर बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को भी स्वस्थ रखने में सफल होगा। ऐसा अगर हम करते हैं उचित शिक्षण प्रणाली के साथ साथ, अगर हम बालकों की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए अपने पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दें कि एकदम ज्यादा ही नहीं, क्योंकि हम खुद टीचर हैं हम लोग, हम देखते हैं कि अगर हम एक पीरियड के बाद दूसरे पीरियड अगर चले गए तो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बोरिंग हो जाते हैं, लगातार हो जाता है। वही चीज लगातार होने से उन लोग में पढ़ने की जो इच्छा नहीं रहती है। तो हम वहाँ कुछ और तरीके से कुछ मोरल स्टोरीज सुना करके कुछ अलग तरीके से बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं। टॉपिक अगर हम लगातार पढ़ाते जाएंगे तो बच्चे उब जाते हैं। तो इसको ध्यान में रख करके उसी के हिसाब से जो है मतलब हम ऐसी शिक्षण युक्तियां यूज करें जिससे बच्चा खुशी खुशी पढ़े। ये नहीं कि प्रेशर हो करके या फिर जबरदस्ती पढ़ना पड़ रहा है तो उससे कुछ फायदा होगा नहीं, और उसमें हम भी, सिर्फ बच्चा ही नहीं, हम भी असफल कहलाएंगे, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं उतनी मेहनत कर रहे हैं, बच्चे के माइंड से बाहर जा रहा है, क्योंकि बच्चे का मन है ही नहीं है, बच्चा बोरिंग फील कर रहा है। इसलिए हम उसे ध्यान रखें तो इसमें दोनों का हम भी सफल होंगे अपने युक्ति में, अपने आइडिया में, और बच्चों का भी जो मानसिक स्वास्थ्य है वह बना रहेगा। आगे जो प्रविधियां हैं और सबसे जरूरी, सबसे इम्पोर्टेंट कि अल्प गृह कार्य। कुछ शिक्षक प्रायः बालकों को इतना अधिक गृह कार्य दे देते हैं कि उसे समय से पूर्ण करना उनकी सामर्थ्य से परे होता है। तो यह बहुत जरूरी ही टॉपिक है। कभी कभी हम बात कर रहे थे अल्प गृह कार्य, तो इसमें यही है कि बच्चों को हम उतना ही गृह कार्य दें कि जितना बच्चा आसानी से कर सके, उसके ऊपर कोई प्रेशर न बने, क्योंकि कभी कभी कुछ ज्यादा हो जाता है जिससे बच्चे जितना समय निर्धारित होता है उतने समय में नहीं कर पाते हैं। तो बालकों द्वारा गृह कार्य को समय से पूर्ण न कर पाने के कारण वे दंड का विचार करके भय व चिंताग्रस्त हो जाते हैं। इससे उनमें मानसिक तनाव उत्पन्न होने लगता है। तो बच्चे जो होमवर्क मिला है, अगर समय से बच्चे नहीं पूरे कर पा रहे हैं, वे नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे क्या होता है, अब उनके अंदर एक डर पैदा हो जाता है, क्योंकि पनिशमेंट का, अगर हम नहीं करके जाते हैं अपना काम, कल हमें पनिशमेंट मिलेगा, तो इससे बच्चे डर जाएंगे। तो डर भय उनके अंदर जब घर कर जाएगा तो ये क्या होगा, ये भी उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालेगा और मानसिक तनाव उत्पन्न करेगा। अतः शिक्षकों को चाहिए कि छात्रों को केवल इतना ही गृह कार्य दे जिसे वे सरलता से बिना किसी मानसिक तनाव के पूर्ण कर सके। ऐसी मानसिक स्थिति उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए निश्चित रूप से हितकर साबित होगी। अगला जो है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन। तो शिक्षकों को चाहिए कि वे विद्यालयों में शिक्षण के साथ साथ
अन्य पाठ्य सहगामी क्रियाएं जैसे खेलकूद, स्काउटिंग, योग, व्यायाम, प्रश्न प्रतियोगिताएं, अभिनय, गायन, वादन, संगीत, नृत्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वच्छता कार्यक्रम इत्यादि का आयोजन नियमित कार्य योजना बनाकर अवश्य करें। ऐसा करने से बालक इनमें से किसी न किसी क्रिया को माध्यम बनाकर अपने संवेगों, इच्छाओं, मूल प्रवृत्तियों, विशिष्ट रुचियों या फिर जन्मजात। तो शिक्षकों को चाहिए कि विद्यालय में शिक्षण के साथ साथ अन्य पाठ्य सहगामी क्रियाएं यानी कि शिक्षण के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जैसे खेलकूद, योग, व्यायाम, क्विज कंपटीशन, गायन, वादन, संगीत, नृत्य, इन सब का आयोजन नियमित रूप से कराना चाहिए। कुछ कुछ अंतराल के बाद, कुछ कुछ समय के बाद ये जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है इसे कराना चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चों की जो इच्छाएं होती हैं, उनके अंदर क्या इच्छा है, बच्चे अगर कहते नहीं है डायरेक्ट हमसे, तो वे उस माध्यम से बाहर निकलेंगे। तो हम देख के हम लोग ऑब्जर्व करें या फिर बच्चा खुद उसे जो है हमारे सामने जाहिर करेगा। हम देखते हैं प्रायः कि कुछ बच्चे पढ़ने में वीक है लेकिन वो बच्चा गेम में एकदम अव्वल है, एकदम अच्छा है। कुछ बच्चे गाने में अच्छे हैं, तो कुछ बच्चे जो है कल्चरल प्रोग्राम देने में अच्छे हैं। तो ये उनके अंदर की जो गुण होते हैं वे उसे जाहिर करते हैं। तो हमें क्या करना होगा कि शिक्षण के साथ साथ ये जो शिक्षण सहगामी क्रियाएं हैं इन्हें समय समय पर आयोजित करना चाहिए और इससे बच्चा अपनी क्षमता को अभिव्यक्त करेगा, करते हुए अपने मानसिक स्वास्थ्य को सफल रखने में वह सिद्ध होगा। अगली प्रवृत्ति है निर्देशन एवं परामर्श। शिक्षकों को चाहिए कि वे विद्यालय में अन्य शैक्षिक गतिविधियों के साथ साथ निर्देशन एवं परामर्श की भी व्यवस्था करें। कि देखिए, हम तो पढ़ाना तो हमारा काम है, ये है शिक्षकों का, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी कराना हमारा ही काम है। इसके साथ साथ बच्चों को परामर्श देना, निर्देशन देना। अगर बच्चे किसी चीज में कंफ्यूज हैं, उन्हें हेल्प की जरूरत है, वे अगर हम लोगों से कुछ सलाह मांगते हैं, कुछ पूछते हैं, तो हमें इसकी भी व्यवस्था रखनी चाहिए। उन्हें मोटिवेट करें या फिर उनके जो भी समस्या है उसका समाधान करें। तो छात्रों के विषयगत समस्याओं का निर्देशन एवं निदान या फिर भविष्य में पाठ्यक्रम, विषय चयन, इन सब अगर बच्चे आपसे कुछ ऐसा कंसल्ट करते हैं, कुछ ऐसा बात करते हैं अपने आगे की पढ़ाई के बारे में, आगे हम क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे तो ठीक रहेगा, बच्चा अगर कंफ्यूज है, वह उसका समाधान चाहता है, तो हम वहाँ क्या करेंगे, परामर्श यानी कि सलाह जो है जरूर देना चाहिए और जरूर देंगे, तभी बच्चे का हेल्प होगा। क्योंकि बच्चा जब कंफ्यूज है, वह अपना फैसला नहीं ले पा रहा है या समझ नहीं पा रहा है कि आगे हमें क्या करना है, तो हम बच्चों के वहाँ हेल्प करें, क्योंकि ये भी उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेटर है, अच्छा है। इसके साथ साथ शिक्षक अपने विवेक के अनुसार छात्रों को आवश्यकता अनुसार उनके मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाने हेतु अन्य कार्यकलापों का आयोजन या व्यवस्था कर सकते हैं। तो इन जो बातें यहाँ प्रविधियां दी गई हैं, इन विधियों के अलावा शिक्षक अपने विवेक के अनुसार यानी कि अपने बुद्धि से, अपनी समझ से, अपनी सोच से, अगर उनके पास कुछ और आइडियाज हैं जो उन्हें उनके माइंड में आई है, तो वो उसका भी इस्तेमाल बच्चों के बीच में, छात्रों के बीच में जरूर कर सकते हैं। कुछ जो भी आइडिया हो जो बच्चों के लिए फायदेमंद हो, वह शिक्षक यूज कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंडसन ने यहाँ कहा है कि बालकों के मानसिक स्वास्थ्य में उन्नति के लिए शिक्षकों से निम्न कारकों को अपनाने की अपेक्षा एवं सलाह दी है। जैसे कि शिक्षण विधियों में मानसिक स्वास्थ्य के सिद्धांतों का प्रयोग, बालकों एवं उनके साथियों के संबंधों की देखभाल, अभिभावक अध्यापक सम्मेलन का आयोजन, बालक के मानसिक स्वास्थ्य में उन्नति के लिए शिक्षकों और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के सम्मिलित प्रयास। यानी कि विद्यालय में जो है पीटीएम, पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो गया, शिक्षण विधि के साथ साथ जो मानसिक स्वास्थ्य के निदान,
जो सॉल्यूशन है उसके बारे में, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के उन्नति के लिए टीचर क्या कर सकते हैं, जो विशेषज्ञ हैं उन्हें भी सम्मिलित कर सकते हैं, सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जो है विद्यालय में स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन करा सकते हैं। विद्यालयों में जो है बच्चों की स्वास्थ्य की जांच के लिए आयोजन जो है कराया जा सकता है। रिसर्च कहती है कि 5 साल की उम्र तक दिमाग का 90% विकास होता है। बच्चे बेहतरीन ऑब्जर्वर होते हैं, उनका मस्तिष्क आसपास के लोगों के व्यवहार को पकड़ लेता है। इसी तरह उनकी कुशाग्रता विकसित होती है धीरे धीरे अवलोकन द्वारा, और यह भी कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। बच्चे अपने माता पिता और शिक्षकों को देखते हैं और उनके व्यवहार से टुकड़े इकट्ठा करने और उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वे जो भी चीजें सीखते हैं वे कहाँ से सीखते हैं, तो अपने माता पिता, अपने शिक्षकों के व्यवहार को देख करके, अपने आस पड़ोस के व्यवहार को देख करके उसे देखते हैं और उन सब की नकल करते हैं। सबसे हर जगह से लेकर के क्या करते हैं, नकल करते हैं। बच्चों को अपने बड़ों की बात सुनने की आदत नहीं रही, लेकिन वे कभी भी उनकी नकल करने से नहीं चूकते हैं। यह एकदम सच है। बच्चे बड़ों की बहुत सारी बातें ऐसा होता है कि नहीं सुनेंगे, नहीं ध्यान देंगे, लेकिन बड़ों की नकल करने से वे कभी भी पीछे नहीं रहते हैं। तो यह न केवल माता पिता की जिम्मेदारी है बल्कि शिक्षकों की भी है कि वे बच्चों में किसी भी मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण को देखें और बच्चे की मदद के लिए उपाय करें। विद्यार्थी अपना अधिकांश समय विद्यालय में व्यतीत करता है, यह उनका दूसरा घर बन जाता है। वे सिर्फ न पढ़ाई करते हैं बल्कि अपने स्कूली जीवन में बहुत सारी भावनाओं और जीवन को बदलने वाली घटनाओं से गुजरते हैं। वे दोस्त बनाते हैं, वे लड़ते हैं, वे सफल होते हैं, असफल होते हैं, और इसी से उनका भावनात्मक भाग जो है विकसित होता है। तो देखिए यहाँ जो है यह कहा जा रहा है कि बच्चे सिर्फ माता पिता की ही जिम्मेदारी नहीं है बल्कि बच्चे शिक्षकों की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि विद्यालय जो होता है बच्चों का दूसरा घर होता है। पहला घर तो उनका खुद का अपना है, माता पिता का, लेकिन क्योंकि बच्चे यहाँ अधिकतर समय, दिन का जो समय होता है अधिकतर समय उनका विद्यालय में होता है, और इसलिए यह विद्यालय उनका दूसरा घर बन जाता है। इसलिए ये हमारी भी, जैसे कि घर पे अगर बच्चा है तो माता पिता की जिम्मेदारी है, और यहाँ हम ही उनके लिए सब कुछ है, यानी कि शिक्षक ही बच्चों के लिए सब कुछ है। इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर बच्चों में ऐसा कुछ मानसिक लक्षण दिखता है, कुछ सिम्टम्स अगर हमें दिखाई देती है कि बच्चा जो है किसी तरह से ग्रसित है, तो हम उसकी मदद करें, उस चीज से बाहर निकलने में उसकी हेल्प करें, क्योंकि बच्चे जो है सब कुछ यहीं पे सीखते हैं। दोस्त बनाते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, सफल भी होते हैं, असफल भी होते हैं, और यहीं पे उनकी जो भावनात्मक का भाग होता है उसका विकास विद्यालय में ही होता है। इसलिए अतः हम सभी शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि हम बच्चों के ऊपर ध्यान रखें। आमतौर पर घर माता पिता को 1, 2, 3 बच्चों से निपटना पड़ता है, लेकिन स्कूलों में शिक्षकों को 60, 50, 63 इससे भी अधिक बच्चों का सामना करना पड़ता है। और ये 60, 65, 70 जो भी बच्चे हैं कैसे होते हैं, अलग अलग तार वाले के अलग अलग माइंड वाले बच्चे होते हैं। समझ में आता है कि दिमाग के इस कोलाहल में शिक्षकों के लिए हर एक बच्चे पर नजर रखना मुश्किल हो जाता है। तो यह बात हकीकत है, सही है कि इतने कोलाहल में, यानी कि गैदरिंग में, क्योंकि घर पर माता पिता क्या करते हैं, 1, 2, 3 या 4, इससे ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए किसी के भी, तो उतने बच्चे संभालते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है कि एक शिक्षक 50, 40, 45 बच्चों के बीच, और वो जो हल्ला गुल्ला कोलाहल के बीच
ये बात मानने वाली है कि हर एक बच्चे पे नजर रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए शिक्षकों के लिए जीवन को आसान बनाने के लिए आपके लिए एक लक्षण जांचकर्ता लेकर आया है, जो शिक्षकों को किसी भी प्रकार के व्यवहार परिवर्तन या बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य बीमारी की शुरुआत का पता लगाने में मदद करता है। तो ये तो होना चाहिए, जब स्वास्थ्य मेला का आयोजन होगा, स्वास्थ्य शिविर लगेगा, जांच होगी बच्चों के, तो हम आसानी से वहां पर क्या होंगे, जिन बच्चों में जो अगर कुछ कमी है तो उन्हें अलग जो है उसको किया जाएगा, फिर उनका निदान भी किया जाएगा। तो इस तरह से आसानी से पता लगेगा। इसलिए क्या है कि विद्यालयों में स्वास्थ्य मेला का आयोजन करना फायदेमंद है, कराना चाहिए। यदि बच्चा दूसरे बच्चों से घुलता मिलता नहीं है, बहुत झगड़े में पड़ जाता है और मूड में अचानक बदलाव दिखाता है, कक्षा में लगातार विचलित रहता है, तो ये थोड़ा सा शिक्षकों को मदद करने के लिए ये 2-4 थोड़ा कुछ पॉइंट्स है, जिसे देख करके हम उतना तो गहराई से बच्चों पे उतने गैदरिंग में नहीं ध्यान लगा सकते हैं, लेकिन ये कुछ सिम्टम्स है जिसे देख करके हम कुछ तो अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे कि दूसरे बच्चों से घुलता मिलता नहीं है, बहुत झगड़े में पड़ जाता है और मूड में अचानक बदलाव दिखाता है, कक्षा में लगातार विचलित रहता है ना, कि पढ़ाई में ध्यान नहीं है, लगातार वो लगता है कि उसका मन कहाँ है कहाँ नहीं, ध्यान कहीं भटक रहा है, विचलित रहता है, हमेशा अधूरे होमवर्क या कार्य पुस्तिकाओं के साथ दिखाई देता है, यानी कि कभी भी जो अपना गृह कार्य है वो पूरा नहीं करता है, अधूरा ही रहता है, चाहे आप ज्यादा दीजिए तब भी या फिर कम रखे तब भी। टिफिन या किसी भी तरह के ईटिंग डिसऑर्डर खत्म नहीं करता है, यानी कि टिफिन जो घर से बच्चा लेके आता है वह खाने में रुचि नहीं दिखाता है, कभी पूरी टिफिन जो है फिनिश नहीं करता है। अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स है, दिन भर हमेशा थका हुआ और नींद में रहता है, अगर बच्चा थका सा हमेशा नींद में अगर लगता है, आलसी टाइप लगता है, अचानक वापस बात करना या दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया, या फिर अचानक से दुर्व्यवहार करना, आपस बात करना शुरू कर दिया, तो ये सब थोड़े थोड़े ऐसे सिम्टम्स हैं कि हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चा हमारा जो है क्या हो गया है, थोड़ा सा माइंड से कुछ इसके प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ ना कुछ इसके अंदर समस्या है। तो हम क्या करेंगे कि बच्चे से जानने की कोशिश करेंगे, उससे बात करेंगे, उससे पूछेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या है उसके बीच, जो इस तरह का ये जो है व्यवहार कर रहा है। आगे मानसिक स्वास्थ्य के विकास में शिक्षकों की भूमिका। सबसे पहले शिक्षकों को ये जो ऊपर बताए गए लक्षण हैं बच्चों के बीच, इसकी पहचान करने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों में जो लक्षण दिखे उसे पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। प्रत्येक छात्र का शैक्षणिक प्रगति पर भी नजर रखनी चाहिए, यानी कि छात्र की जो शैक्षणिक प्रगति है उस पर भी नजर रखे कि क्या प्रोग्रेस है, क्या कर रहा है, कैसा था अब कैसा है। दूसरे, यदि किसी बच्चे में जरा सा भी लक्षण दिखाई दे रहा है या उसके व्यवहार में कोई असामान्य परिवर्तन हो रहा है तो शिक्षक व्यक्तिगत रूप से बच्चे से बात कर सकते हैं। शिक्षकों को छात्रों के साथ भरोसे का रिश्ता बनाना चाहिए ताकि वे खुलकर बात कर सके और जो उन्हें परेशान कर रहा है उसे साझा कर सके। तो बच्चों में अगर ये लक्षण दिखाई देते हैं जो अभी हमने ऊपर बताया, तो उसे जानने की कोशिश करें। छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार रखें ताकि छात्र आसानी से अपनी समस्या हमें शेयर कर सके और हम उस समस्या को क्या करें, समाधान करने की कोशिश करेंगे। बच्चे से बात करने के बाद शिक्षक प्रधानाध्यापक को समस्या बता सकते हैं और माता पिता से इसके बारे में बात कर सकते हैं। साथ ही शिक्षक माता पिता के साथ संवाद कर सकते हैं। यानी कि कहने का अर्थ यहाँ पे है कि जब हम बच्चे से उसकी प्रॉब्लम समझ लेंगे, बच्चा हमें शेयर कर देता है ये समस्या है वो समस्या है, तो हम अपने स्तर से उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम उस समस्या को अपने प्रिंसिपल तक पहुंचा सकते हैं, बच्चे के गार्जियन तक, यानी कि बच्चे के माता पिता तक भी
पहुंचाएंगे, उनसे बात करेंगे, उस बारे में डिस्कस करेंगे, आपके बच्चे के साथ क्या हो रहा है वह उन्हें बताएंगे। मानसिक स्वास्थ्य के विकास में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण है और यह बच्चे को उसके डर और जुनून का शिकार होने से बचा सकता है। यानी कि शिक्षकों की भूमिका जो है बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के सुधारने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे सवाल है यह कि क्या शिक्षक अकेले ऐसा कर सकता है। यह एक सवाल है कि क्या शिक्षक जो है अकेले ऐसा कर सकता है, तो नहीं, शिक्षक अकेले ही ऐसा नहीं कर सकता है। इसमें स्कूल प्रबंधन की सक्रिय मदद और भागीदारी के बिना शिक्षकों के लिए प्रत्येक बच्चे के मनोविज्ञान को समझना आसान नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में स्कूल की भूमिका शिक्षकों और माता पिता के रूप में महत्वपूर्ण है। तो अगर यहाँ हमारे सामने सवाल है कि क्या शिक्षक अकेले ऐसा कर सकते हैं, तो नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इसमें जो स्कूल प्रबंधन यानी कि स्कूल कमेटी जो होती है, मैनेजमेंट जो होती है, इनका सहयोग बहुत जरूरी होता है। माता पिता का सहयोग जरूरी होता है, जिससे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को क्या हो सके, बढ़ावा दिया जा सके। इसमें माता पिता की भी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए और मैनेजमेंट स्कूल प्रबंधन की भी। अगर मान लीजिए हम लोग स्वास्थ्य मेला ही लगा रहे हैं, जैसे जांच, बच्चों की जांच होती है, तो हम अपने से नहीं कर सकते हैं, शिक्षक इसे नहीं कर सकते। इसके लिए क्या होगा, मैनेजमेंट की हेल्प चाहिए, मैनेजमेंट का सहयोग चाहिए, तभी ये संभव है। तो आज जो है सोच में बदलाव लाने की जरूरत है। ये जो शिक्षा प्रणाली के साथ साथ शिक्षा प्रणाली का गठन है, उसके बारे में जो लोगों की सोच है, उस सोच में बदलाव लाने की जरूरत है। हमें लगता है कि अभी जो है, जैसे कि बच्चों को अगर मेंटल हेल्थ के बारे में बताना है, मेंटल हेल्थ के बारे में समझाना है, तो उन्हें हम क्या करेंगे, कुछ कहानियां सुनाएंगे, कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज बताएंगे। अभी हम थोड़ी देर में आप लोगों के सामने 1-2 वीडियो प्ले करेंगे, क्योंकि हम छोटे बच्चों को, छोटे ही नहीं, हमारे जो भी बच्चे हैं, उन्हें जो मोटिवेशनल वीडियो है हम दिखाएंगे और फिर बच्चों को समझाएंगे कि इस तरह जो बच्चे मन में बहुत सारे बात पाल के रखे हुए रहते हैं। जैसे कि कक्षा में क्या होता है, कोई नया बच्चा आया, तो जब वो नया बच्चा आता है तो वो अपने आप को थोड़ा अलग महसूस करता है, क्योंकि पहली बार किसी नए स्कूल में, नए कक्षा में जाना उसके लिए बहुत डर की बात होती है। बहुत सारे बच्चे थोड़ा डर जाते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ मुझे कोई जानता ही नहीं है, या फिर मैं यहाँ किसी को जानता ही नहीं हूँ। और बच्चा क्या हो जाता है, इस बात को लेकर के काफी स्ट्रेस में रहता है। इस बात को लेकर के बच्चा काफी स्ट्रेस में रहता है कि मेरा स्कूल का पहला दिन, नया स्कूल, नया क्लास, कैसे बच्चे होंगे, कैसे टीचर होंगे, और वह डरा डरा हुआ क्या करता है, क्लास में एंटर करता है। और यहाँ आने के बाद अगर उसे कक्षा के छात्रों से सहयोग न मिले, अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, नए नए बच्चों को थोड़ा अलग ट्रीट करते हैं, उन्हें उनसे घुल मिल के न रहना, उनसे दूरी बनाए रखना, तो ये सारी बातें जो है बच्चों पे और गहरा असर डालती हैं। तो उस स्थिति में क्या, हम टीचर, हम शिक्षकों का कर्तव्य है कि हम वहाँ पर बच्चों को हैंडल करें, बच्चों को समझाएं। जो नया छात्र आया है उसके लिए भी, और जो पुराने छात्र हैं उन्हें भी हम समझाएं कि हम ऐसा, इनके साथ आप लोग, ये नए हैं तो आप इनके साथ दोस्ती कीजिए। नहीं कर ये है, पहला है, हाँ। ठीक, चला। तो इसके लिए हम बच्चों को छोटे छोटे वीडियो दिखा करके भी मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि बच्चे क्या करें, जो उनकी थिंकिंग होती है, जो सोचते हैं,
जिस सोच को क्या करते हैं वे सोच सोच करके बहुत सारी बातें होती है जिसे सोच करके बच्चे अपने मन में स्ट्रेस जो है ले लेते हैं, और यही जो स्ट्रेस होता है यह क्या होता है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। माँ को देखो, वो हर हाल में गाना गाती है। मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। अंतरा, तुमने 2 अलग अलग तरह के रिबन बांध रखे हैं। हाँ माँ, मुझे दोनों रंग पसंद है, इसीलिए मैंने दोनों को साथ पहना है। ठीक है, जैसे भी तुम खुश रहो। चलो अपना लंच बॉक्स लो। कोई मुझसे बात नहीं कर रहा। शायद मैं इनके ग्रुप में रहने के लायक नहीं हूँ। सबके पास सुंदर सुंदर टिफिन है और सब साथ में खाना खाते हैं। कोई भी अपना खाना मेरे साथ नहीं बांटता। मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ। हेलो अंतरा, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलना चाहोगी? क्या तुम ठीक हो बेटा? मैंने देखा कि तुम कुछ परेशान हो। सब ठीक तो है? मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती हूँ। जब भी मैं इन सबको एक दूसरे के साथ बात करते, खेलते और गाना गाते सुनती हूँ, मुझे लगता है मैं उनके ग्रुप का हिस्सा कभी नहीं बन सकती। कोई भी मुझसे बात नहीं करता, कोई मुझसे अपनी टिफिन भी नहीं बांटता। मैं हमेशा अकेले खाती हूँ। अंतरा, मुझे गर्व है कि तुमने अपने मनोभावों को व्यक्त किया। तुम्हारी माँ ने पौष्टिक खाना दिया है, जो कि एक सुंदर टिफिन बॉक्स से कहीं बेहतर है। मैं समझ सकती हूँ कि कई बार ये तुम्हारे लिए काफी कठिन होता है, लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसी परिस्थितियों में भी सकारात्मक तरीके से कार्य करने की क्षमता है। तुम अकेली नहीं हो। तुम अपने चुने तरीकों से ऐसी मनोभावों से निपट सकती हो। मेरी माँ कहती है कि जब भी कभी मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित न कर पाऊँ तो इस गाने को गाऊं, और इससे मुझे सुकून मिलता है। ओह, इसलिए तुम कोने में बैठकर ये धुन गुनगुना रही थी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कृपया ध्यान दीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कृपया ध्यान दीजिए। हमारा विद्यालय एक अंतर विद्यालय गायन प्रतियोगिता आयोजित करवा रहा है। अगर आप इसमें भाग लेना चाहते हैं तो यहाँ आए और कक्षा के लिए कुछ पंक्तियाँ गाएं। ठीक है, शुरू करते हैं। अच्छा प्रयास बच्चों। और कोई? अंतरा, हाँ? क्या तुम कक्षा को अपनी प्रतिभा दिखाना चाहोगी? हाँ? जरा उसके बालों को तो देखो। वो 2 अलग अलग रंगों के रिबन बांधे हुए हैं। कितनी बेवकूफ है। मैम कितनी अच्छी है और मेरी मदद करती हैं। माँ ने मुझे प्रेरणा दी, जिसके कारण आज मैं अच्छा गा सकती हूँ। मैं अपनी प्रतिभा दिखा सकती हूँ। मैं तो उड़ जाऊं आसमां के पार। अंतरा ने अपने चुनौतीपूर्ण मनोभावों को नियंत्रित किया। जैसे वो अपनी कक्षा के सम्मुख खड़ी हुई थी, उसी ऊर्जा के साथ फिर से वो अंतर विद्यालय गायन प्रतियोगिता में अपनी चमक बिखेरने को तैयार है। वाह, इस लड़की की कितनी बेहतरीन आवाज है। मुझे बहुत पसंद आया इसका गाना। ये हमारी बेटी है। अंतर विद्यालय गायन प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार दिया जाता है अंतरा को। मनोभावों को समझना और नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। हमारी देखने, सुनने, सूंघने, छूने और सोचने की क्षमताओं की ही तरह
महसूस करने की क्षमता भी आत्म जागरूकता के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। मनोभावों को व्यक्त करने की क्षमता किशोरावस्था में बहुत मायने रखती है। जिस उम्र में किशोर भावनात्मक दबाव का सामना करते हैं, हमेशा याद रखें, आप अकेले नहीं हैं और आपको अपनी भावनाएं दूसरों से साझा करनी चाहिए। आपके भीतर प्रेम और सहयोग की भावना है और आपका मानसिक स्वास्थ्य व भावनात्मक भलाई बहुत मायने रखती है। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि गांधी जयंती समारोह में शामिल होने के लिए शीघ्र स्कूल के मैदान में आ जाएं। विद्यार्थियों, गांधी जी का दर्शन हमें बेहतर जीवन जीने और इस दुनिया को बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। गांधी जी हमेशा कहते थे कि हम बिना विचारे कोई काम नहीं करें। परिवर्तन का पहला कदम हमारा अपना हो और जो बदलाव हम चाहते हैं वो पहले खुद में लाएं। आपके सामने जब भी कोई कठिनाई आए तब बापू की सीख याद करना। उनके शब्द आपको सही दिशा दिखाएंगे। बच्चों, आपकी परीक्षाएं नजदीक आ गई हैं, इसलिए अपने दोस्तों के साथ भयमुक्त होकर तथा मन लगाकर तैयारी करो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अभय अपने दोस्त साहिल को परीक्षा के बारे में बताने का निर्णय लेता है। वह पिछले कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रहा था क्योंकि वह एक दुर्घटना में चोट लगने के कारण डॉक्टर की सलाह पर आराम कर रहा था। साहिल, कैसे हो और अब तुम्हारी परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ और कुछ दिनों में वापस स्कूल आऊंगा, पर मेरे नोट्स अधूरे हैं। चिंता मत करो, तुम मेरे नोट्स ले लो और हाँ, जल्दी ठीक हो जाओ। धन्यवाद अभय। अभय, कैसे हो तुम? तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? नमस्ते आंटी, मैं ठीक हूँ। आज हमने स्कूल में गांधी जयंती मनाई और हेडमिस्ट्रेस मैम ने हमें गांधी जी की सीख के बारे में बताया। सच में? मैम ने क्या बताया? उन्होंने बताया, गांधी जी हमेशा कहते थे कि हम बिना विचारे कोई काम नहीं करें। परिवर्तन का पहला कदम हमारा अपना हो और जो बदलाव हम चाहते हैं वो पहले खुद में लाएं। विद्यार्थियों, गांधी जी का दर्शन हमें बेहतर जीवन जीने और इस दुनिया को बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। बहुत अच्छा। गांधी जी की सीख आज भी अनमोल है। मैं आशा करती हूँ कि युवा बच्चे उनके सिद्धांतों और सीखों का पालन करें। शुक्र है अभय ने मुझे अपने नोट्स दे दिए, लेकिन पता नहीं इतने कम समय में मैं परीक्षा की तैयारी कैसे करूंगा। मैं तो बस इनसे परीक्षा में नकल कर लूंगा। गुड मॉर्निंग साहिल, सब ठीक है? मैम, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आज परीक्षा में नकल करने का सोचा था, लेकिन मुझे गांधी जी की सीख याद आ गई। उन्होंने कहा था कि इंसान को ईमानदारी बरतनी चाहिए, फिर सच चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो। इसलिए अब मैं नकल नहीं करूँगा। कृपया मुझे परीक्षा की तैयारी के लिए थोड़ा और समय दे दीजिए। मैं तुम्हारी ईमानदारी से खुश हूँ साहिल। मैं तुम्हें दूसरा और अंतिम मौका दूंगी, पर तुम परीक्षा की अच्छी तैयारी के लिए खूब पढ़ाई करो। मैंने आज हेडमिस्ट्रेस मैम से बात की। तुमने मुझे गांधी जी की जो सीख बताई, उससे मुझ में सच बोलने का हौसला आया। मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने सच कहा। इस पार्क में इतनी भीड़ क्यों है? चलो चलकर देखते हैं। नमस्कार अंकल, ये क्या हो रहा है? ठेकेदार कुछ मजदूरों के साथ पार्क तोड़ने आया है। उनकी यहाँ पर दुकानें बनाने की योजना है। नहीं, ये हमारा पसंदीदा पार्क है। चलो जल्दी हेडमिस्ट्रेस मैम को खबर करते हैं। मैं इस बारे में जिला कलेक्टर से बात करूंगी। सर, हमें आपकी मदद चाहिए। कृपया कुछ कीजिए और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण रोकिए। वो पार्क हमारे बच्चों के लिए जरूरी है। मैं आपकी चिंता समझ सकता हूँ मैम, लेकिन बच्चे तो कहीं और भी खेल सकते हैं। दुकानें खुलने से जिले का व्यापार बढ़ेगा। सर, दुकानें कहीं और भी खुल सकती हैं। बच्चे पार्क में व्यायाम करते हैं और विभिन्न खेल खेलते हैं। हमें उनकी तंदुरुस्ती और खुशी नहीं छीननी चाहिए।
बहुत अच्छी बात है कि बच्चे पर्यावरण और सामुदायिक जीवन को लेकर इतना जागरूक हैं। मैं मामले की जांच करूंगा और दुकानें खोलने के लिए दूसरी जगह निर्धारित करूंगा। पार्क को कुछ नहीं होगा। हमारे मूल्यों से हमारी सोच, हमारे शब्द एवं हमारे कार्य बनते हैं तथा हमें जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करते हैं। ज्ञान और कौशलों के साथ साथ शिक्षार्थियों को मूल्यों एवं अभिवृत्तियों को भी सीखना जरूरी है, क्योंकि यह अधिक शांतिपूर्ण, समावेशी एवं संधारणीय समाज बनाने में योगदान देते हैं। एक दूसरे पर निर्भरता, एक दूसरे से जुड़ाव एवं तेजी से बढ़ती दुनिया में यह आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक मिलकर कार्य करे, जिसमें वे सामाजिक बदलाव को बढ़ावा देने के लिए नागरिक के रूप में जागरूक होकर सहानुभूति पूर्वक जुड़े। करे बच्चों की मन की बात, अच्छा रहे मानसिक स्वास्थ्य। आज हम कुछ कहानियाँ देखेंगे। सब जो महसूस करते हैं, आओ मन को टटोले, देखे और समझे कहानी, उसका अर्थ संजोले। तो प्यारे बच्चों, आज हम सुनेंगे कुछ कहानियाँ जिन्हें आप पाएंगे कि शायद आपकी लाइफ से भी जुड़ी हुई हैं, जैसे रिया की मन की बात। आइए ध्यान से देखते हैं। आजकल मम्मी जल्दी गुस्सा हो जाती हैं। मम्मी डांटेंगी पर एक बार पूछ के देखूं। मम्मी, क्या मैं बाहर झूलों पर खेलने जाऊं? कितनी बार कहा है नहीं। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। जब से स्कूल बंद क्या हुए हैं, पढ़ते ही नहीं है बच्चे। मुझे मेरे दोस्तों की बहुत याद आ रही है। मेरा मन खुश नहीं रहता, सब बच्चों को ही डांटते हैं। चलिए अब देखें एक गरीब बच्ची गीता के मन की बात, जो कि अभावों से भरा जीवन जी रही है। जब से स्कूल बंद हुए हैं दोपहर का खाना भी नहीं मिलता। मुझे कितना काम करना पड़ता है और मार भी पड़ती है। मैं ऑनलाइन क्लास भी नहीं ले पाती। क्या मैं पढ़ पाऊंगी? घर पर पैसों की कमी है और बीमारी का डर। ये थी गीता की कहानी। हम सभी के घरों में या आसपास कोई ना कोई बुजुर्ग जरूर रहता है। तो आइए देखें बूढ़े दादाजी के मन की बात। इस बुढ़ापे में बहुत अकेलापन महसूस होता है। अब बाहर आना जाना भी बंद है, क्या करें? दादाजी की मजबूरी के बाद देखते हैं रोहन की मनमानी, जिसने मोबाइल को आदत बना लिया है। वाह, नया गेम। रोहन, तुम 3 घंटों से मोबाइल पे हो, ऐसा क्या काम है? मम्मी, मैं बोर हो रहा हूँ और क्या करूँ? कोरोना काल में हमारे समाज को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे हम कुछ भाव बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हैं, जैसे अकेलापन, डर, मायूसी और मोबाइल एडिक्शन। ये सब मनोवैज्ञानिक विकार के लक्षण हो सकते हैं। गुस्सा आना, आक्रोश, डरावने सपने, ये सब बताता है कि हमारा मन अस्वस्थ है और पेरेंट्स, टीचर, सोसाइटी को इसके बारे में कुछ करना चाहिए। अभिभावकों के लिए जरूरी है कि वो बच्चों के लिए समय निकालें, उनसे बातें करें और अपना गुस्सा बच्चों पर ना निकालें। रिया, आज का काम में तुम मेरा हाथ बटाओगी? हाँ मम्मी। और रिया बेटा, कुछ बातें करें। और बताओ, तुम्हारी ऑनलाइन पढ़ाई कैसी चल रही है? मेरे टेस्ट होने वाले हैं, उसी की फिक्र है। मैं रिवीजन में तुम्हारी हेल्प करूंगी। फिर आप मेरे साथ खेलेंगी?